क्या पूरा ब्लॉक में पेश Let us start the class. Good morning, all of you. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब लोग? पढ़ाई लिखाई चल रही है सबकी? यस सर। वेरी गुड। कोई एक्स्ट्रा कैरिकुलम एक्टिविटी सब कर ले हो? कैड वर्ड सब सीख रहे हो? Yes, sir. Doing some mini projects kind of thing? Yes, sir. Very good. Please try to enhance your skill. Okay, and use AutoCAD or SolidWorks, any designing software to design something. Okay, and applied some physics on that and try to simulate and get the result and analysis that one. There are so many videos available in the YouTube. Pick one, make one, okay, by own, and try to analysis that one, and then think yourself कि हम इसमें कैसे modify कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं. Okay. हाँ, अटेंडेंस होगा अभी. In the middle I will take. Okay, so let us start the class. Things are visible. Are you getting the PPT on the? Yes, sir. Yes, sir. So we were at P-type semiconductor. So we have seen the N-type semiconductor. How it was made? By doping pentavalent impurity like phosphorus. Okay, phosphorus is having 5 valence electron in their cell, in their last cell. Okay, so if we add that one, that structure is will be called as N-type material, N-type semiconductor. Okay, and in N-type, electrons are majority carrier, as the concentration of electron in that is very high as compared to the holes. Okay, got the point? So we have seen the P-type semiconductor. Okay, what was that? If we add trivalent impurity into the pure semiconductor, that structure, whatever structure will be made with that, is called as a P-type semiconductor. Okay, so we have seen the structure, how it is going to be made. Okay, how covalent bond is attached with this dopant. Okay, and we have seen the energy band diagram. Okay, and then now we have to see the, when we are applying the some potential over there. Okay, so this is how, when we apply a potential into the P-type material, and that is made with the adding trivalent impurity. Okay,
So you see, the concentration of hole is more than the electron. Okay. So now if you apply a what we can say, if you apply a potential across it, then electron will flow into the direction of who is joining late. Okay. So under the what I can say, under the this is the electron and this is the holes. Okay. So it holes will flow in the direction of the negative potential attached with that, because it's going to be attracted by this potential. Okay, negative terminals of the battery, and your holes is going electron is going to be into the direction of positive potential of the battery. Okay, and the current will flow into the opposite direction of movement of electron. Okay, so finally it's going to be added. So p-type semiconductor material under the electric field. Okay, so this is how. Who is joining late again and again? Okay, now we'll see we'll combine the things in the energy band diagram form. First, we have seen the intrinsic semiconductor, then extrinsic semiconductor, then intrinsic semiconductor. We have seen the energy band diagram, then n-type material we have seen, then p-type material. If you combine three, you will get like this. Okay, that picture. Energy band diagram of 3. Okay, this is very, very important. Okay, I have to have, once I told you that please make this diagram, you have to फटाफट एकदम ड्रॉ करने का है. ओके, इसमें कोई दिक्कत? ये इंट्रिंसिक वाला था, सिंपल. ओके, in the middle there is a Fermi level. Okay, you can show it like that, and you can name it like Fi. Okay, आप ऐसा दिखा सकते. Okay, now when there is pure semiconductor material, then this is the energy band diagram of that. Okay, conduction band, valence band. In the middle of the conduction and valence band, there is a Fermi energy level. Okay, we have defined that, and that this is called as forbidden energy band. Okay. Now, when you are making n-type material, this Fermi energy, intrinsic Fermi energy level is going to be shifted, towards the conduction band, because we are adding impurity in that. So one electron is free in that system if we add one atom of donor atom. Okay, एक एटम ऐड करने से हमारे पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाता है. तो वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल है वो यहाँ पे. ओके, that is we are calling as a donor level. Okay, because that phosphorus atom is donating one electron into the system. Okay, free electrons. Now if we look our p-type material, then this is the valence band and this is the conduction band. This Fermi level energy is going to be shifted to the near the valence band. Okay, and this is called as a acceptor level. Okay, and this is what? A vacancy or holes. Okay, so this is as combined with all the energy band diagram. कोई दिक्कत यहाँ तक? बोलो बाबू, कोई दिक्कत है? No, sir.
Okay, let us go ahead. The difference between the intrinsic and what is that? 8th से class join कर. Okay, so what is the difference, okay, between the intrinsic and extrinsic semiconductor? क्या क्या होगा जल्दी जल्दी बताओ तो, एक एक आप लोग कुछ. हाँ, जो आपने समझा देखा उसके पहला तो प्योर होगा सर, एक तो दूसरा इम्प्योर होगा, हाँ मतलब डोपिंग करके बनाया हुआ है। एक तो एक्सट्रिंसिक और इंस्ट्रिंसिक प्योर मतलब सेमीकंडक्टर है। हाँ हाँ. और कोई? इंट्रिंसिक में सर कंडक्टिविटी लेस होता है सर, लो होता है, और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी हाई होता है सर, ड्यू टू डोपिंग। गुड. इंट्रिंसिक में सर नंबर ऑफ कैरियर्स लो होता है और इसमें हाई होता है हाँ एक्सट्रिंसिक में। गुड. और इंट्रिंसिक में सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स इक्वल होते हैं, और एक्सट्रिंसिक में सर अलग अलग हो सकते हैं, मे बी ग्रेटर हो सकता है होल्स और लेस भी हो सकता है सर, Very डिपेंडिंग अपॉन very एन nice. टाइप और पी टाइप। Very good. The valid point. So whatever you said is a main point. Okay. Intrinsic में क्या होगा? Number of electron और holes इक्वल होंगे। इक्वल होंगे, लेस फ्री होंगे, क्वांटिटी के हिसाब से लेस एंड इक्वल होंगे. ओके, क्योंकि जितना होल्स बनेगा उतना ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, मतलब जितना फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेगा उतना ही होल्स होगा. फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसे हो रहा है? जब कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक हो रहा है. ओके, इंट्रिंसिक में जब वो ब्रेक होगा तो वो मूव करेगा, जहां से ब्रेक हुआ वहां पे वैकेंसी है. ओके, दैट इज वी आर कॉलिंग एज ए होल. तो जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्री होगा उतना ही हमारा होल्स होगा. ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. और दूसरा में द नंबर ऑफ होल्स एंड मे बी द डिफरेंस. ओके, एक्सटेंसिक में डिफरेंस हो सकता है बिकॉज वी आर डोपिंग समथिंग. ओके, विथ इम्प्यूरिटी. एटम के अनुसार उसके होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स चेंज होंगे डिपेंडिंग अपॉन एन टाइप है कि पी टाइप है ना. उसके अनुसार एक और जो मेन पॉइंट बच्चे तो कोई बोला, someone has said कि कंडक्टिविटी, ऑब्वियसली वी आर मेन थिंग इज द कंडक्टिविटी. कैसे चेंज हो रहा है? बिकॉज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स present into the system when we are considering the extrinsic semiconductor is much greater than the intrinsic one. Okay, so जहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा रहेगा ऑब्वियसली उस मटेरियल का या उस सिस्टम का कंडक्टिविटी, सिस्टम तो नहीं बोलेंगे इसको, मटेरियल का कंडक्टिविटी हाई हो ऑब्वियसली. ओके, मतलब बढ़िया से कंडक्शन करेगा, मतलब स्मूथ करंट फ्लो होगा. ओके, तो लेट अस सी. और हम कैटेगरी वाइज बनाओगे तो बहुत सारा डिफरेंस बन जाएगा, बट मेन यही था. क्लियर? ठीक है. So pure one is what? A group 4 elements, है ना? सिलिकॉन, जर्मेनियम, प्योर वन. ओके, अभी क्या होगा? ये से डोपेंट होगा ग्रुप 3 और 5 से, एक्सटेंसिक वाला. ऑब्वियसली कंडक्टिविटी इंक्रीज हो गया, ग्रेट क्या बोलते हैं उसको, मतलब बहुत ज्यादा, है ना. उसके बाद कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विद द राइज इन द टेम्परेचर. ओके, इसमें क्या हो रहा था? जब
आपका टेम्परेचर से आप दे रहे थे तो कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक कर रहा था, उसके अकॉर्डिंग फ्री हो रहा था, फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन. So conductivity increases with rise in temperature. Whenever you are increasing the temperature, so number of free electron is going to be increased in the system after breaking the covalent bond. तो जब ज्यादा फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएगा डिपेंडिंग अपॉन कितना ब्रेक हुआ है कोवलेंट बॉन्ड, तो आपका कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगा. इसमें कंडक्टिविटी डिपेंड किस पे कर रहा है? अमाउंट ऑफ इम्प्यूरिटी वी आर एडिंग. अगर हम 100 एटम ऐड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली कनेक्टिविटी बढ़ जाएगा. अगर 200 एटम ऐड करेंगे तो 200 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे उस सिस्टम में, तो और कंडक्टिविटी बढ़िया हो जाएगा. सो द कंडक्टिविटी depends on the amount of impurity added into the system. Okay, if you consider as extrinsic semiconductor, if we consider extrinsic semiconductor, okay, and number of holes is always equals to, okay, same thing. So we have discussed this point. So this is the main difference and you have to remember this. और remember क्या करना है, एक बार आप पढ़ लिए तो मतलब जस्ट ये याद ही हो गया है ना. क्लियर? किसी को डाउट है इसमें डिफरेंस में? बोलो बाबू, किसी को डाउट है? नहीं सर. नहीं sir. Okay, let's go ahead. Mass action law. This is very, very important. Till now, please make the attendance. I am giving only 2 or 3 minutes for making the attendance. Only 2 or 3 minutes. Please mark that one. I will never, afterwards, I will not allow to fill. Okay? सबको ये बात क्लियर है? सर लिंक एक्टिव नहीं है सर. हाँ, मैं एक्टिव कर दे रहा हूँ बाबू. Just wait for 1 minute. 1 second. I will announce. और गिन के सिर्फ 1 से 2 मिनट. अटेंडेंस बनाने में इतना टाइम नहीं लगना चाहिए. स्लो हो जाता. ओके, गो अहेड. स्टार्ट करो अटेंडेंस भरना. ओनली 2 minutes you have.
Last 30 seconds. Fill the attendance. सर रुक जाइए सर, रोल नंबर डालने दीजिए। ओके सर, हो गया। Okay. Let us start the thing. I have closed the attendance. Are you getting the? Are you getting the visuals? Yes, sir. Yes, sir. Mass action. Okay. You have, I think you have gone this into the mechanical also. Okay, but same thing is in electrical. Okay. Mass action. ठीक है, क्या बोलता है ये? क्या बोलता है ये? कौन बताएगा मास एक्शन लॉ जो प्रीवियसली पढ़ चुके हो आप? हम्म, कौन बताएगा? एनीबडी? सर Sir. केमिकल रिएक्शन होता है इसमें। हाँ हाँ बाबू बोलो। सर वो जो सर बोल सर। कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है ना सर किसी भी रेट से, हम्म, वो उसका मतलब कि सर जो रिएक्टिंग सब्सटेंस होता है मास का, उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सर उसके प्रोडक्ट का। हम्म। Now, if we look our system, okay, what we are dealing with right now, electrons and holes, obviously with the concentration. Okay, so actually this law tells us that the product of number of electrons and number of holes
is constant at fixed temperature and is independent of amount of donor or acceptor impurity added. क्लियर है पॉइंट? क्या बोल रहा है कि number of electrons in the conduction band and number of the product of number of electrons present into the conduction band and holes present in the valence band is going to be independent. अगर टेम्परेचर वो है तो फिक्स्ड है तो is going to be independent. ओके कि हम कितना अमाउंट का इम्प्यूरिटी ऐड कर रहे हैं, है ना, या डोनर हो या एक्सेप्टर. क्लियर? ठीक है. So under the thermal equilibrium for any semiconductor, obviously the product of the free electron concentration and free hole concentration is equals to constant, okay, square of intrinsic carrier concentration. So this relation is known as the mass action law. Earlier what I have said, okay, क्या बोल रहा है कि जो प्रोडक्ट है आपका, that suppose Ni is the concentration of electrons and holes, है ना. Ni जो है ये सेमीकंडक्टर मटेरियल का कंसंट्रेशन है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है. I मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात है, हाँ, और P मतलब जो होल्स है उसका ये कंसंट्रेशन. तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स बराबर होंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, Ni स्क्वायर लिख सकते हैं. इसके जगह पे हम Ni पुट कर देंगे तो टोटल क्या हो जाएगा, Ni स्क्वायर हो जाएगा. इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू N डॉट P, है ना. दिस इज द मास एक्शन लॉ. N डॉट P मतलब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात है, कंसंट्रेशन ऑफ होल इलेक्ट्रॉन एंड होल्स. ओके, like that. Mathematically it's going to be like that. N सर एक्सट्रिंसिक में तो नंबर ऑफ होल और इलेक्ट्रॉन ये कंफर्म नहीं रहता कि बराबर रहेगा, तब कैसे ये एप्लीकेबल होगा सर उस पे? नहीं कंफर्म नहीं रहता है कि बराबर नहीं, प्रोडक्ट बोल रहे हैं. We are telling about the product, not the individual one. Got the point? See, when इक्विलिब्रियम का बात करें, जब सिस्टम इक्विलिब्रियम है, कोई चीज जैसे मान लेते हैं आपने एक कंकड़ मार दिया पानी में, तो देयर आर सो मेनी थिंग्स आर हैपनिंग. लेकिन जब वो स्थिर हो जाएगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिकली चीजें न्यूट्रल होंगी. न्यूट्रल कब होगा, जब दोनों का संख्या बराबर हो जाए. What the point? When we are talking about normal one, ठीक है, बोल रहा है कि दोनों का जो संख्या है वो इंडिपेंडेंट है, डिपेंड आपका इससे डोपिंग से. ओके, एट द इक्विलिब्रियम जब सब बराबर है, मतलब कोई हलचल नहीं, टेम्परेचर कांस्टेंट, सब कुछ कांस्टेंट हो गया. इनिशियली देयर सो मेनी थिंग्स विल हैपन. ओके, but once it's reaches its equilibrium means सब कुछ शांत है, कोई टेम्परेचर का मूवमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, तब आपका प्रोडक्ट ऑफ जो कैरियर कंसंट्रेशन है होल्स का, फ्री होल्स का एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू द स्क्वायर ऑफ कैरियर कंसंट्रेशन इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. We can prove this in mathematically
but right now it's not necessary. Okay, N dot P is going to be equals to Ni square. Got the point? थोड़ा सा आपको अटपटा लग सकता है ये चीजें, बट दिस इज, यू कैन प्रूव दिस. आप सीधा का सीधा उसको मत देखो, किसको? कि कितना अमाउंट आप ऐड कर रहे हो, कितना नहीं कर रहे हो. ये बात कर रही है अंडर द थर्मल इक्विलिब्रियम. ओके, द प्रोडक्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन एंड फ्री होल्स. कहने का मतलब है जब आप ऐड किए, सपोज 5 इलेक्ट्रॉन्स ही ऐड किए एक्सटेंसिव, तो होल्स तो अभी नहीं है ना, तो 5 ही ऐड हुआ. तो प्रोडक्ट क्या होगा? पी तो नहीं है ना, पी का तो चीज नहीं आया ना अभी. फ्री होल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बातें हो रही. वो किसके बराबर हो जाएगा? Ni के, मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इनटू द नॉर्मल इंट्रिंसिक वन वाला, क्योंकि उसमें होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स बराबर होंगे. क्लियर? If necessary, I can prove it. Okay, this thing. This is the law actually. Okay, mass action law. This is called as mass action law. कोई भी सिस्टम है जो अपने आप को अनस्टेबल से स्टेबल फॉर्म में आना चाहेगा, ठीक? तो कोई भी सिस्टम में अगर फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और फ्री ऑफ होल्स है, दे विल ट्राई टू, क्योंकि होल्स फिजिकली वैसा एग्जिस्ट नहीं करता. ये कब आएगा? जब कोई कोवलेंट बॉन्ड टूटेगा, अगर एन टाइप है तो, अगर नॉर्मल भी है तो, तभी उसकी एग्जिस्टेंस है. आइदर पी टाइप मटेरियल में वी आर डोपिंग इट विथ बोरोन, तभी इसका एग्जिस्टेंस. तो क्या बोल रहा है कि अंडर द थर्मल इक्विलिब्रियम the product of free electrons concentration and free holes concentration is equals to a constant, a square of, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का कुछ कांस्टेंट होगा, कितना अमाउंट से डोपिंग कर रहे, तो ये बराबर होगा. सपोज इसका प्रोडक्ट 5 आ रहा है, मान लेते, कोई कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी रहेगी, तो इसका भी स्क्वायर 5 ही आएगा. मतलब इसका प्रोडक्ट सपोज 5 आ रहा है, तो ये भी 5 ही हो जाएगा. some constant you have to multiply with. Okay, because आप एक बार जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ गया, फ्री होल्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ गया, वो कब बढ़ेगा? जब सिस्टम तो बन गया. कब बढ़ेगा? जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करो.
तभी कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा और ये होगा वो होगा, उसके बाद फ्री इलेक्ट्रॉन्स बने। अदरवाइज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अगर 5 है तो 5 ही रहेगा, 3 है तो 3 ही रहेगा, 2 है तो 2 ही रहेगा। बढ़ेगा कब, जब कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक हो। बट पहले ही ये बोल रहा है अंडर द थर्मल इक्विलिब्रियम, मतलब देयर इज नो चेंज ऑफ टेम्परेचर। दैट मीन्स व्हाट, जितना भी फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ऑलरेडी इन द सिस्टम में उतना ही रहेगा। और क्या होता है, जो नियर बाई इलेक्ट्रॉन्स और होल्स रहते हैं एक दूसरे को फिल अप करते रहते हैं, तो अंडर द थर्मल इक्विलिब्रियम एकदम चीजें सेटल हो जाती। ओके प्लीज रिस्पॉन्स। अगर आप नहीं समझे तो अगले क्लास में अगेन आई हैव टू रिपीट दिस। सर पूरा अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा है हमको। अगर मान लीजिए कि होल्स आपका यहाँ पे √5 है, तो उसके लिए n को भी √5 होना पड़ेगा, तब ni का स्क्वायर बराबर होगा। नहीं उसे मैथमेटिकली आप अभी मत देखो,